talk about arithmetic operations on the character. So as we just look yesterday about that concept, small introduction about the concept of arithmetic operations on character, that when we consider a single character, definitely system will recognize it as a number because the ASCII values are assigned to that particular character, and on the basis of that it will restructure it. That means we pass the character A. So small a is indicating or having a ASCII value 97. That will be understood to the compiler, and compiler will again convert it into the human readable form, that is what, one particular alphabets, that is A, which is visible on your screen when you are doing the program, correct. So C also allows to manipulate the characters the same way as we do with the numbers, either integer numbers or the some of the double numbers also. Whenever a character constant or a character variable is used in an expression, it is automatically converted into the integer value by the system itself, because when we do the character addition a plus a, so there should be the values should be added in a one particular third variable, which is a output, like a x equals to a plus a. It is not like that a plus a becomes a square, और we can say that 2a, ठीक है. So a plus a 2a नहीं होगा या फिर a square नहीं होगा. In case of a computer programming language like C, it will add the ASCII values. So we are having some representations over here. X equal to सिंगल कोट में हमने a लिखा और उसको प्रिंट किया. So your output will be the 97 on the screen, ठीक है. So we are printing that value of x with reference to the ASCII value of a character a. Now suppose that if we use the x equal to z minus 1, now what will be the value of z? That is 122, correct. If you start from 97 and rest of the other characters, then in that case x y z, so 122 will be the ASCII value of a z, and then we will do the minus, so it will get the 121. Now again 121 will be the another ASCII value of some other variable, करेक्ट. किसी और वेरिएबल की भी ASCII वैल्यू हो सकती है. सो वी कैन check that whether this ASCII value and their original ASCII value will match or not. That we can also do with the help of a while loop. So while loop से हम वो भी कर सकते हैं. Then we can compare the ASCII values with the help of logical AND. Anyone remember the logical AND? Yes, sir. What is the property Yes, of sir. Logical operators. yes, what is the property of that double AND, logical AND? If both the conditions are true, then the expression will be true. Exactly. Any one of is true in that case? The expression will false. That is false. Correct. Means it is just like 1 1. Result is 1. 1 0 0. 0 1 0. 0 0 of course 0. Okay. 1 is indicated by true boolean value and 0 is indicated by false boolean value. Okay. So that we can do also. Along with that, we are having the ASCII value of 7 and 0. ठीक है, जो numbers हैं, ठीक है, even if the numbers are also indicating with ASCII values, then hash, dollar sign, percent sign, power sign, ampersand sign, star, square bracket, at the rate, not equal to, tilde operator, then plus sign, minus sign, division, all the buttons which are present on your keyboard, right. So they are having their respective ASCII values, and we can manipulate with that particular ASCII values, just like this, x equal to ASCII value of 7, which is 55, and then ASCII value of a 0, which is 48. So your answer is 7. Okay. So that we can do with the help of a अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन अ वन पर्टिकुलर स्ट्रिंग. ठीक है, जनरली ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है या फिर पूछा नहीं जाता है. ठीक है. अगेन देर इज़ अ वन
feature or C library will supports a function that convert the string into the digit, string of a digits into their integer values. जो भी string हम दे रहे हैं, ठीक है, string of a digit that will be converted into the integer value, like year of the birth 1988, this year of birth will be converted. ठीक है, how we can convert it, that x equal to ATOI in bracket string. So string that we will pass in terms of a 1988 means ये तो नंबर है, इंटीजर नंबर है, हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है, बट दैट विल बी पास विद द हेल्प ऑफ ATOI फंक्शन, ठीक है, बिकॉज उसके सामने ब्रैकेट दिया है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ फंक्शन एंड विच स्टोर्स द वैल्यू इनटू द x एंड विच इज नथिंग बट द x इंटीजर वेरिएबल, ठीक है. नाउ दिस नंबर डज व्हाट, the number is a string variable which is assigned to the string constant 1988. The function ATOI converts the string into the contained numbers 1988 and its numeric equivalent 1988. अब उसमें से 1 9 8 8 इसका कुछ इक्वालेंट जो भी बनेगा कॉम्बिनेशन, ठीक है, so that will assign and then it will it to the integer variable year. अब ये ईयर में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है. नाउ अगेन if you perform this ATOI on some compiler, again it will show that it is not defined, ठीक है. रिसेंटली मैंने एक कंपाइलर यानी मोबाइल के ऊपर करके देखा ATOI नंबर, so it will show the message like your conio.h. if you enter the conio.h header file in your mobile application, few mobile application compiler will allow you to perform the conio.h, but few will say that it is this file is not available or this file is not in the compiler, correct. So ATOI function is also there. If you use the turbo C or if you use the visual basic, then definitely you will get that particular function. But the part of discussion is just that we can get number as a string also, we can do the or perform the calculation with the help of a string also, means a plus b भी हम कर सकते हैं, a plus c भी कर सकते हैं, but actually characters are not getting added, their ASCII values are getting added, ठीक है. So that kind of operation that we can perform. So here are some examples that they prints all the values of alphabets A to Z. A to Z उसने पूरे values यहाँ पे प्रिंट कर दिए 65 66 अप टू सो ऑन, ठीक है. पहले तो कैपिटल्स है Z तक 90 तक, फिर 97 से स्मॉल लेटर्स चालू हो जाते हैं, ठीक है, एंड टिल द 122 means 65 to 122 capital alphabets and small alphabets are there, ठीक है. That program we can also perform, ठीक है. Now moving further, putting a string together. Now if you want to put a string from a one variable and another variable in a combined way, ठीक है. So how we can do that, string 1 plus string 2 or string 1 plus hello, like this, ठीक है. Just as we cannot assign a one string to the another directly, we cannot join the two strings together by a simple arithmetic addition. इसके पहले हमने जब addition perform किया, so it is the addition of a ASCII value. But if we have a string just like that, name of the person, and the string 1 is having the name of the person, string 2 is having the surname of the person, right, XYZ or PQR, these are the some two strings are there, and then we wish to that the name of or the data in the string 3 में data क्या रहेगा, XYZ PQR ऐसा रहना चाहिए, that we are expected, ठीक है. But it is not directly possible with the help of a plus sign. Actually plus sign does what, ये क्या है, प्लस साइन को हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा ऑपरेटर बोल सकते हैं, Arithmetic operator. arithmetic operator. So in case of arithmetic operator, we observe that it will only do the arithmetic operation, not the any kind of character related or the any other operations, ठीक है. So arithmetic है तो उसमें आप ये जो चीज़ है स्ट्रिंग प्लस हेलो, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, ठीक है, यानी दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने का जो काम है, ठीक है,
कंबाइन करने का नहीं बट ज्वाइन करने का, कॉन्केटिनेशन, ठीक है। कॉन्केटिनेशन एंड ज्वाइन एंड एडिंग इज समथिंग डिफरेंट। कॉन्केटिनेशन जब करेंगे हम तो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग विल बी एज इट इज एंड द नेक्स्ट स्ट्रिंग विल बी पुट फॉरवर्ड साइड, यानी उसके आगे उसको हम लिखेंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट अ कॉन्केटिनेशन, ठीक है, जॉइंट, ठीक है। बट when we say that the copy, in that case the existing content of a one string will be copied into the another string. So if the targeted string is already having some data जिसमें हम कॉपी करना चाहते हैं, उसमें ऑलरेडी कुछ अगर डेटा है तो उस केस में वो रिप्लेस हो जाता है, जैसे हमारे वेरिएबल्स में होता है। सम इक्वल टू सम प्लस आई करते हैं हम, आई जैसे इंक्रीमेंट हो जाएगा फॉर लूप में तो आपकी सम की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। जैसे हमने सीरीज प्रिंट की अभी कल शायद 1+3+5+7+ जितने भी आप नंबर्स दोगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑड नंबर सीरीज हमने प्रिंट की और उसकी सम करना चाहते थे हम, ठीक है। तो सम में हम जब भी एग्जीक्यूट करेंगे फर्स्ट साइकिल ऑफ फॉर लूप, some value will be taken, SOME, some value will be stored into the SOM sum variable, ठीक है, और addition variable. Later on again it will execute another cycle, और एक बार अपडेट होगा और एक बार अपडेट होगा and likewise. So that updation is what continuous does, we can say that copying something different than that of the concatenation, ठीक है। string copy भी हम कर सकते हैं, string concat भी कर सकते हैं, ये आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। so these statements are not valid, ठीक है। बहुत बार हमें ये भी पूछा जाएगा कि अगर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करने हैं देन हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, उसमें ये पूछा जाएगा कि एक स्ट्रिंग है दूसरी स्ट्रिंग है उसको ऐड कर दो, हो गया। या फिर एक स्ट्रिंग है स्ट्रिंग वन और एक हेलो नाम का एक वर्ड है, ठीक है, इसको ऐड कर दो तो ये होगा क्या, सो इट इज इनवैलिड वन, ठीक है। then the process of combining the two string, it is called as a concatenation and that can be done with the help of some of the functions। जैसे अब इसमें उन्होंने एक फंक्शन बताया है, ठीक है। in that case name of I that we will use a array of a name नाम का हमने एक array यूज किया, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट नेम हम ऐड करेंगे नेम ऑफ I प्लस नेम ऑफ j जो उसमें हम ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने i एलिमेंट को नेम ऑफ आई जे के प्लस में ऐड कर दिया, यानी ये क्या हो रहा है आपका फर्स्ट एरे will having a name, second array will having a surname, and then they are togetherly join or together they join the particular name and it will generate first name and last name, ठीक है। ये पूरा है ना इसका जो पैराग्राफ है इसमें वही बताया गया है उन्होंने, with a one particular space it will replace that particular part of first then space and then second, ठीक। so it can be done with the help of such kind of techniques by editing or by updating array elements and their locations। जैसे name of I यूज किया हमने name of I plus j plus 1, उसके बाद हमने यूज किया नेम ऑफ I plus j plus k plus 2, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं बट जनरली ये यूज नहीं किया जाता है कॉन्केटिनेशन के लिए, डायरेक्ट फंक्शन है हमारे पास अवेलेबल कॉन्केटिनेटिंग के लिए और कॉपी के लिए वो हम यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अ पार्ट एंड देन उसका एक एग्जांपल भी दिया उन्होंने, ठीक है। so it is quite confusing rather than if you are not using the any function, और उसके अलावा भी अगर हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। again if you run this particular program also on some compiler so it will definitely give you warning, error तो नहीं देगा वो बट वार्निंग मिलेगी आपको, जैसे आपको get s get put s get ch put char इसमें वार्निंग मिलती थी, ठीक है। so that can be the warning in your compiler। now we switching to the comparison of two strings। so when we get a single string like a x plus y equal to sum, ये अगर हम करते हैं तो x की ASCII वैल्यू और y की ASCII वैल्यू वहाँ पे आपको इंडिकेट होती है और उसमें सम में एक वैल्यू जनरेट होती है, ठीक है। अब जब हम एक स्ट्रिंग के साथ दूसरी स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं अगेन हियर it will compare with the help of ASCII values, right, because
अगर हमने एक स्ट्रिंग लिखी है, किसी का नाम लिखा अमित, AMIT, and then we will try to compare the again Amit with a small letters. ठीक है, so we will see that there is a difference. Capital AMIT is not equal to small letters AMIT. अब ये क्यों हुआ? Anyone? Capital AMIT is not equal to the small AMIT. सर दोनों की ASCII वैल्यू अलग आती है. Because both will start with their own ASCII values. Capital A will start with 65, small a will start with 97. So it will not match on a first 97. case. Yeah, exactly. So it will not match on a first case itself. उसके आगे का तो चेक नहीं होगा. But if we consider for a human being, AMIT कैपिटल में रहा या स्मॉल में रहा, वन एंड द सेम थिंग फॉर अस. इंसान तो वही है, ठीक है, वो तो नहीं बदलने वाला. बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग कंपैरिजन, इफ यू वांट टू कंपेयर द स्ट्रिंग, लाइक प्रिंट एफ लिखते हो आप प्रोग्राम में, पी कैपिटल लिखा तो चलेगा क्या? प्रोग्राम में अगर हम प्रिंट एफ लिखते हैं, उसका पी अगर कैपिटल लिखा तो चलेगा क्या? No, sir. सर्टनली नॉट. बिकॉज जब भी आप प्रोग्राम करते हो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में. अब मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट होगा तो आस्की वैल्यू जनरेट होगी हर एक कीवर्ड की, हर एक जो भी आपने कमांड्स लिखी होगी, फंक्शन लिखे होंगे, इवन इफ सेमी कोलन कॉमा, उसका पूरा का पूरा EXE फाइल जनरेट होती है. एंड EXE फाइल विच इज हैविंग बाइनरी कन्वर्शन. बाइनरी कन्वर्शन में एक भी अगर नंबर आगे पीछे हो गया तो वहाँ पे क्या देता है? एरर दे देता है. ठीक है, सो इट सी इज एक्चुअली केस सेंसिटिव एंड वो सिंटैक्टिकल एरर आपको शो करता है. तो यहाँ पे भी वही चीज़ होने वाली है कि इफ़ वी आर कंपेयरिंग, सी डज नॉट परमिट द कंपैरिजन ऑफ अ टू स्ट्रिंग डायरेक्टली. जैसे हम डायरेक्टली यहाँ पे अगर करते हैं, इफ नेम 1 इक्वल टू इज इक्वल टू नेम 2, इफ नेम इज इक्वल टू ABC. ठीक है, जैसे एडिशन की थी हमने, नेम 1 स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, या फिर स्ट्रिंग 1 प्लस ABC, या फिर हेलो, तो वो भी अलाउ नहीं किया जा गया. कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रिंग इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट अलाउड. ठीक है, नॉट परमिटेड. ठीक है, अगेन फॉर दैट वी हैव टू डू द सम फंक्शंस. तो ये अभी इसके पहले के जो भी टॉपिक्स हमने ये दो देखे हैं कि दैट फर्स्ट वन इज द concatenation, second one is the comparison, so that we can handle with the help of these functions. तो कौन से functions है वो? C के string related functions हैं. so they can perform that particular part. just like first str stands for string और cat stands for a concatenation. ठीक है, अब इसमें और पहले इसमें क्या डिफरेंस है? पहले हम बोल रहे थे कि C will not allow you to perform this concatenation, नहीं करने देता है, डायरेक्टली ऐड नहीं करने देता है. बट यहाँ पे क्या है? strcat फंक्शन अगर यूज किया तो वो करने देता है. तो इट जस्ट लाइक दैट कि the way in which we are using the printf and scanf into the program, will you define the work of printf and scanf? आपने आपके प्रोग्राम में printf और scanf जो यूज किए हैं अब तक के, उसके रिलेटेड कुछ भी डेफिनेशन आपने लिखी है क्या कभी कि printf ने ये करना चाहिए, scanf ने ये करना चाहिए? No, sir. नो, तो सर किसी ने भी नहीं लिखी है. तो वो डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है? In compiler. stdio.h. एग्जैक्टली, हेडर फाइल. कंपाइलर तो जो हम देंगे उसको वही लेगा ना. कंपाइलर में डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली. कंपाइलर में बहुत सारी ऐसी फाइल्स है, हेडर फाइल्स. ठीक है, जब हम उसको यूज करेंगे तब कंपाइलर को रिकॉग्नाइज होगा कि अच्छा ओके. जैसे बहुत से कम बच्चे अनम्यूट करते हैं जब भी सवाल पूछा जाता है, तब मुझे रिकॉग्नाइज होता है कि यस, ऑन द अदर एंड फ्यू पीपल्स आर देयर, फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर, और कुछ बच्चे अनम्यूट ही नहीं करते. तो बीइंग एज अ कंपाइलर मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो है या नहीं है. ठीक है, एग्जैक्टली. तो यहाँ पे कंपाइलर का रोल थोड़ा साइड में है, बट द रोल ऑफ stdio.h header file in which the definition of printf and scanf is written, and thus
वी डोंट हैव टू राइट इट सेपरेटली कि printf ने ऐसा 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 करना चाहिए, scanf ने ऐसा ऐसा करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली strcat, strcmp, strcpy, strlen, इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो भी उसमें लिखी गई है। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं, सिर्फ ये जो प्राइमरी फंक्शंस है, बट कुछ फंक्शंस ऐसे हैं उनकी डेफिनेशन str.h में नहीं है, thus we have to use the some string related string.h हेडर फाइल, ठीक है। या फिर stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी हम यूज करते हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन दैट whether the error is there, in that case we can have to use that particular header files, ठीक है। फर्स्ट डे से आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें प्रोग्रामिंग एरर फ्री रहना चाहिए, दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। बट वेन एवर देर इज अ एरर वी शुड नो हाउ टू टैकल विद दैट एरर एंड विच टूल्स आर रिक्वायर्ड टू टैकल दैट पर्टिकुलर एरर। तो इसलिए एरर रिकॉग्नाइजेशन, एरर फाइंडिंग ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी प्रोग्राम करने के लिए लिया और उसमें एक भी एरर नहीं आई। अगर नहीं आती तो वेल एंड गुड, यू हैव डन वेरी गुड जॉब। बट इफ देर इज अ एरर, डोंट पैनिक, try to recognize where that error occur, whether the format is wrong or whether the syntax is wrong or whether the concept which we are applying that is wrong. So we just have to find out it, ठीक है। So in case of string concatenation we use the string cat stands for a concatenation. The format of this function is like this: string concatenation means strcat string 1 comma string 2, ठीक। now string 1 string 2 दोनों में string हो सकती है, हम जब concatenate करेंगे तब वो join हो जाएगी, ठीक है। उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। then moving further, string strcpy. strcpy means what? The existing string is having some data and we are adding or we are copying some another data into it, ठीक है। सो जब भी कॉपी का कंसेप्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे बताया उन्होंने कि strcpy function works almost like a string assignment operator. It takes the following form: strcpy string 1 string 2 and it assigns the content of the string 2 to the string 1. Now the string 2 may be the character array variable or the string constant, like strcpy हमने लिया है city and दिल्ली, ठीक है। सो दिल्ली जो है वो राइट हैंड साइड पे है यानी string 2, तो string 2 कॉपी होगा string 1 में, ठीक। नाउ we will assign the string दिल्ली to the string variable city. Similarly city1 city2, अब ये city2 जो है उसमें जो भी डेटा होगा that will be assigned to the city1. That is what exactly the strcpy does, correct. Then strlen function, len stands for length of a particular function. इसके पहले अगर हम strlen या फिर कोई भी स्ट्रिंग की अगर लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं देन वी हैव टू एग्जीक्यूट द फॉर लूप। जितने बार फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वो पर्टिकुलर कर्सर या फिर पॉइंटर रीड करेगा, पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर, देन इट विल रिसीव द आइदर नल कैरेक्टर और अ \n, दो में से एक अगर उसको रिसीव हो गया देन इट विल स्टॉप। वाइल कंडीशन के थ्रू भी आप कर सकते हो, फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक। एंड वी विल फाइंड आउट द लेंथ, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव ऑलरेडी रेडीमेड फंक्शन, right? That is what strlen. Now how it works, n equal to, n is declared as an integer variable because length is always in the integer, correct. कभी ऐसी कोई string रहेगी जिसकी इंटीजर जिसकी लेंथ फ्लोट में हो सकती है? एनी पॉसिबिलिटी? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसी स्ट्रिंग हो सकती है कि जिसकी लेंथ फ्लोट में है? Any possibility? No, sir. Certainly not. So because of that what happened, the value of n will be remain integer value itself, ठीक। so strlen string, हम जो भी string पास करेंगे
उसमें जो भी डेटा होगा, जितनी भी लाइन्स होंगी, सो दैट मच ऑफ कैरेक्टर्स विल बी काउंटेड एंड इट विल स्टोर्ड इनटू द वेरिएबल n। ठीक है, अब ये जो भी हम देख रहे हैं कि एक पहला पार्ट हमने देखा कि हम कॉन्केटिनेट करने जाते थे, बाद में स्ट्रिंग को मर्ज करना चाहते थे या फिर कॉपी करना चाहते थे, तो उसके लिए हमको बहुत सा एक अलग तरीके से प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत पड़ गई थी। ठीक है, इसके पहले पुटिंग द स्ट्रिंग टुगेदर या फिर कॉन्केटिनेट द स्ट्रिंग विथ ईच अदर, कॉपिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम वन टू अनदर, तो उसके लिए हमको प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। वही अगर प्रोग्राम एक स्टैंडर्ड मेथड की तरह वो अगर लिख के रख दिया और उसकी डेफिनेशन हमने एक लेबल के थ्रू, लेबल क्या है तो strcpy, strlen, उसके बाद strcmp और एक था strcat। ठीक है, तो ये जो सभी फंक्शंस हैं, str रिलेटेड जो भी फंक्शंस है, तो उसमें हमने एक स्किप कर दिया शायद strcmp, वो देखेंगे हम। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं इनके डेफिनेशन पहले से हम प्री डिफाइन करके रखते हैं इनसाइड द स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स, जो भी हेडर फाइल्स होंगी stdr.h होंगी या फिर string.h होगी, उसमें हम उसको डिफाइन करके रखेंगे। एंड व्हेनेवर द यूजर वांट टू एक्सेस और द प्रोग्रामर वांट टू एक्सेस, it will get the easiest way to access it by using the name of that function. Thus we don't have to use the method, हमको पूरी की पूरी मेथड वो पर्टिकुलर प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसका सिर्फ उस फंक्शन का कॉल करेंगे एंड वंस द फंक्शन विल बी कॉल इनटू द प्रोग्राम it will use the output. Again, strcmp, cmp stands for a comparison. The strcmp compare the two strings which are identified by the arguments and has a value 0 if they are equal, and if they are not, it has a numeric difference between the first non matching characters in the string. ठीक है, जैसे अगर किसी ने स्ट्रिंग दे दी, जैसे मैंने बताया था कि AMIT कैपिटल में पूरा और स्मॉल में दे दिया AMIT। ठीक है, इन दैट केस इट विल कंपेयर इट न्यूमरिकली, उसका जो भी वैल्यू बनेगा वो न्यूमरिकली कंपेयर किया जाएगा, एंड इफ देर इज अ जीरो that we will get that comparison is correct, then it will show you it is common, string is common। ठीक है, otherwise it will show it is a mismatch। ठीक है, तो ये जो भी theoretical part अभी हमने चारों के रिलेटेड डिस्कस किया है, that we will see with the help of a one simple program। So is it the font is clear or should increase? Font size क्लियर है क्लियर okay, so क्लियर है सर। okay, okay, ठीक है। So here we use instead of a stdio.h directly string.h। ठीक है, बट अब string.h यूज करते हैं, इसका मतलब है stdio.h यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, we should use stdio.h because we have to use printf, scanf, then their definitions also। ठीक है, so initially we declare the 3 string array variables। ठीक है, जिसमें साइज स्पेसिफाई होगी 20 20 20, तो वैसे तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल है क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप है। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ, कैरेक्टर ए, इसको मैं जब डिक्लेयर करता हूँ इट इज़ व्हाट अ कैरेक्टर वेरिएबल इटसेल्फ, बट उसके सामने अगर मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूँ तो इट इज़ एरे, और कैरेक्टर वेरिएबल इसको हम उस केस में क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि एरे विल स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर, और सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज नथिंग बट द स्ट्रिंग। ठीक है, तो जनरली ये पूछा जाता है सवाल कि स्ट्रिंग को अगर डिफाइन करना है एज अ डेटा टाइप, तो यहाँ पे string स्ट्रिंग ऐसा क्यों नहीं लिया जाता, स्ट्रिंग ए ऑफ एरे और ए ऑफ साइज जो भी होगी 10 वगैरह यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो मैं चीज़ आपको पूछ रहा हूँ कि कैरेक्टर ए ऑफ 10 एंड स्ट्रिंग ए ऑफ 10, तो ये दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं क्या हम? इज इट पॉसिबल टू यूज? सर हाँ, यस। सर आपने भी बोला कि वो स्ट्रिंग ए ब्रैकेट में, मतलब वहां पे स्ट्रिंग नहीं दे सकते, वैसा क्यों?
पार्डन सर आपने भी बोला कि वहां पे मतलब स्ट्रिंग ए ब्रैकेट में वैसा नहीं लिख सकते, मतलब वैसा क्यों? वही तो। मुझे एक बात बताओ, स्ट्रिंग जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें उन्होंने डेफिनेशन में ये बताया था कि स्ट्रिंग इज अ वेरी डेटा टाइप और नॉट। कुछ याद आ रहा? स्ट्रिंग डेटा यस टाइप सर, है कि नहीं है? डेटा टाइप है। डेटा टाइप है, बट it is not a derived data type also. ठीक है, it is not a derived data type. So instead of that, if we use the fundamental data type or a derived data type like a array and character, we will get the exact result. ठीक है, यहाँ पे आप string a of 10 अगर यूज करते हो, ठीक है, तो एग्जीक्यूट तो हो जाएगा। अगेन फंडामेंटल नहीं होने की वजह से और डिराइव्ड भी नहीं होने की वजह से वो कुछ कंपाइलर पे एग्जीक्यूट होगा, कुछ कंपाइलर पे नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक, तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हेन वी यूज द ए ऑफ 10, ए ऑफ 10 यानी क्या है, तो एक एरे बनाया है हमने जिसका डेटा टाइप जो भी होगा उतने एलिमेंट्स 0 to 9 स्टोर हो जाएंगे। अब उसमें अगर मैं कैरेक्टर उसको डिफाइन करता हूँ तो वो एक सिंगल अल्फ़ाबेट जो होगा उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रिंग। string. So instead of using a string separately, you can use directly the character. ये उनका कंसेप्ट है, क्योंकि हमने डेटा टाइप्स भी देखे, उनकी मेमोरी एलोकेशन भी देखा कि इंटीजर को कितनी मेमोरी लगती है, फ्लोट को कितनी मेमोरी लगती है, कैरेक्टर को कितनी मेमोरी लगती है, डबल को कितनी लगती है, लॉन्ग को कितनी लगती है। बट उसमें स्ट्रिंग था क्या? नो। यानी So, हमको ये पता ही नहीं है कि स्ट्रिंग को कितनी मेमोरी लगती है। तो वो कौन बताएगा? तो ये बताएगा, ये वेरिएबल बताएगा। This variable can tell you how much it is required, how memory it is required, because एक कैरेक्टर वेरिएबल को एक लगता है, ये हमको पता है। तो 10 अगर है तो 10 लगेंगे, करेक्ट। स्ट्रिंग इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज अ डेटा टाइप। ठीक है, हम स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है, बट इट इज जस्ट फॉर द इन्फोर्समेंट टू द कंपाइलर कि हाँ यस इसको तुम डेटा टाइप करके यूज करो। तो कुछ कंपाइलर उसमें नहीं देते, एरर दे देते हैं, वार्निंग दे देते। इट इज नॉट अ explicit data type, it is not a implicit data type. Explicitly if you want to use, then we have to change your program. प्रोग्राम में आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। डिराइव्ड फंक्शन जो रहते हैं ना, या फिर बिल्ट इन फंक्शन एंड डिराइव्ड फंक्शन, ये हमने देखे हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन में क्या रहेगा, printf scanf आएंगे, डायरेक्टली आप यूज करोगे। डिराइव्ड फंक्शन में जैसे एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, उस प्रकार से अगर आप स्ट्रिंग को डिफाइन करते हो, देन that data type can be work, correct. So the point of question is, if there is a character a of 10, if there is a string a of 10, so which one is better to use? That is character a of 10। ठीक है, वो बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वो आपको फंडामेंटल डेटा टाइप प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। Right. So we are having a 3 strings s1, s2, s3, and we are having the 4 variables x, l1, l2, l3। तो x ये जो वेरिएबल है, चलो ठीक है, ये कोई तो भी टेम्पररी वेरिएबल यूज किया हमने, बट l1, l2, l3 आर नथिंग बट द लेंथ 1, लेंथ 2 एंड लेंथ 3 which indicates the length of a s1, s2, s3 in future. Then enter the two strings constant, कोई भी एक दो स्ट्रिंग आप एंटर करो, क्वेश्चन मार्क, ये दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। देन विद द हेल्प ऑफ अ स्कैनफ, स्कैनफ क्या करेगा, एक ही स्ट्रिंग रीड करेगा। जब भी उसमें वाइट स्पेस आएगा या फिर नल कैरेक्टर आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा उसमें, इन दैट केस उसके आगे का डेटा वो रीड नहीं करता, दैट वी नो। ठीक है, नाउ वी वांट टू डू द कंपैरिजन इन बिटवीन द s1 एंड s2। s1 स्ट्रिंग दे दी यूजर ने, s2 दे दी। ठीक है, अब उसमें कैसे एक और एक एडवांटेज है, स्कैनफ एक ही स्ट्रिंग रीड करता है एट अ वन टाइम। So because of that what happened, we can read the multiple strings, हम यूजर से मल्टीपल स्ट्रिंग्स ले सकते हैं एक ही लाइन में। फॉर एग्जाम्पल राजकमल स्क्वायर अमरावती महाराष्ट्र, तो ये हो गया हमारे लिए एक पूरा एड्रेस। हम अगर पढ़ते हैं, ह्यूमन अगर पढ़ता है तो राजकमल स्क्वायर अमरावती महाराष्ट्र, ये हो गया एड्रेस। ठीक है, बट कंप्यूटर के लिए क्या हो गया, s1 राजकमल, s2 स्क्वायर, s3 अमरावती, s4 महाराष्ट्र। ठीक है,
और %s से अगर हम उसको रीड करना चाहते हैं तो scanf will allow you to read this 4 word, ये जो भी 4 वर्ड है इनको रीड करने देता है scanf, ठीक है। अगर इस पूरी स्ट्रिंग को रीड करना है तो उसके लिए हम अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज कर सकते हैं, और अभी फिलहाल हम फॉर्मेटेड यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, कंपैरिजन ऑफ अ स्ट्रिंग, कॉन्केटिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, करेक्ट। नाउ सर हाँ यस सर आपने अभी बोला कि स्कैनफ बस एक ही स्ट्रिंग रीड करता है, हाँ, तो तो ये मतलब वो सचमुच कर S1 महाराष्ट्र को S1 को रीड करेगा, S2 को भी रीड करेगा, S3 अगर देता हो एक वेरिएबल के ओके लिए ओके एक वेरिएबल के लिए एक स्ट्रिंग को रीड करता है, जब भी उसमें स्पेस आ जाएगा या फिर नल कैरेक्टर आ जाएगा वो रीडिंग स्टॉप कर देगा, करेक्ट। यानी ये जो मैंने पूरी लाइन लिखी है राजकमल स्क्वायर अमरावती महाराष्ट्र, ये एक पूरा एड्रेस है एक पर्सन का, करेक्ट। उसके लिए 4 स्ट्रिंग देना पड़ेगी। उसके लिए 4 स्ट्रिंग लेने पड़ेंगे अगर उसको रीड करना है तो विद द हेल्प ऑफ अ स्कैनर, तो वैसे वो डिसएडवांटेज है, बट इफ यू वांट टू परफॉर्म द स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन इट इज एडवांटेज कि हमको अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग डेटा मिल जाता है, उसके ऊपर जो भी आपको मैनिपुलेशंस करने हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करना है, स्ट्रिंग कॉपी करना है, स्ट्रिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप वो कर सकते हो, एंड दैट वी आर डूइंग हियर, कंपेयरिंग द S1 एंड S2 विद द हेल्प ऑफ x इक्वल टू strcmp, strcmp के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे एंड S1 S2, देन इफ x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो, क्योंकि अगर 0 है मे भी ऐसा हो सकता है S1 में स्ट्रिंग जो दी है उन्होंने, ठीक है, S2 में स्ट्रिंग जो दी उसका जो भी रिजल्ट बनेगा दैट वाज द इंटीजर रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे strcmp क्या कर रहा है, इंटीजर रिजल्ट जनरेट कर रहा है, दैट्स व्हाई वी पुट ओवर हियर x, एंड x का डेटा क्या हमने लिया है, डेटा टाइप इंटीजर, तो वो जब भी x नॉट इक्वल टू 0 देगा तो वो क्या बताएगा, एंटर होगा वो प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, बट जब वो 0 देगा, 0 मीन्स क्या, S1 एंड S2 बोथ आर इक्वल, जैसे मैंने लिखा अमरावती स्मॉल लेटर में और S2 में भी लिखा अमरावती स्मॉल लेटर में, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, करेक्ट, एंड इट विल जनरेट द वैल्यू एज अ 0, तो जैसे हमने strcmp में भी देखा था, यहाँ पे strlen strcmp, ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने, स्ट्रिंग आइडेंटिफाइड बाय द आर्गुमेंट एंड हैज अ वैल्यू 0 इफ दे आर इक्वल, अगर इक्वल रहते हैं इन दैट केस इट विल x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अगर नॉट इक्वल है, ठीक है, इन दैट केस द कर्सर विल एंटर इनटू द if block and will execute the statement that is string are not equal। यहाँ तक के समझ में आया strcmp कैसे वर्क होता है, Yes, sir. एनी डाउट strcmp? No, sir. okay No, sir. okay so we will execute it, इसको हम पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 फंक्शन यूज किए तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ओके ओके, इसको हम फिलहाल के लिए हाइड कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, string length is commented, thus these printf statements are also commented, ठीक, run, now it will say that enter a two string constant capital A M I T space small a m I t, जो अभी हमने डिस्कस किया था, now it shows the output like strings are not equal, अब इसमें a m I t जो है उसमें a में डिफरेंस है, m I t तो सेम है, ठीक है, so we will do that again, m I t m I t m I t स्ट्रिंग्स आर इक्वल, यानी क्या हो रहा है, पहली a की जो वैल्यू है, कैपिटल A की वैल्यू आस्क की वैल्यू अलग है, स्मॉल a की वैल्यू आस्क की वैल्यू अलग है, एंड दस इन अ फर्स्ट स्टेप इट विल शो दैट देर इज x वैल्यू जो रहेगी, कहा गया हमारा x, दिस वन x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है
तो होगा if block execute, that is what, string are not equal, और अगर x इक्वल टू है इन दैट केस स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ठीक है, ये आउटपुट में जो हमने देखा है, पहला देखा AMIT, इन केस ऑफ AMIT कैपिटल A स्मॉल a, mismatch, strings are not equal, small mit, in that case strings are equal। जब भी इक्वल रहेंगे तब x की वैल्यू 0 होगी, 0 होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो else पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा, strings are equal। is it understood, right? सर हाँ, yes, Yes, sir. कैन यू एक्सप्लेन द strcmp इन शॉर्ट? वो समझा नहीं मुझे ठीक से। strcmp in short is just like that। अगर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ ABCD और दूसरी भी स्ट्रिंग लेता हूँ ABCD, A will be match with A, B will be match with B and C will be match with C, दोनों स्ट्रिंग स्मॉल लेटर्स हैं। ठीक है, इन दैट केस देर इज नो डिफरेंस, करेक्ट। अगर डिफरेंस नहीं है तो ये जो आपका strcmp फंक्शन है वो वैल्यू जनरेट करेगा 0। डिफरेंस नहीं है ना, तो 0 ओके है, ऑल कंडीशंस आर ओके, मीन्स 0 डिफरेंस इज देयर। ठीक है, अब अगर उसमें मैं ABC एक जगह पे कैपिटल लेता हूँ और एक जगह पे मैं स्मॉल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ABC, अब क्या बता रहा है वो कि डिफरेंस इज देयर, कंपैरिजन करते टाइम पे देयर इज अ डिफरेंस, एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस देन इन दैट केस एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, क्योंकि कंडीशन क्या दी है, x नॉट इक्वल टू 0। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ABC स्मॉल केस में है तो उस केस में x 0 हो जाएगा, 0 नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। ये एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया आपको कि जब कंपैरिजन यस हम, सर, कल समझ में आ गया पूरा। हाँ, बस वो तो strcmp नहीं समझ था। strcmp comparison in between the two string on the basis of ASCII value। ओके then again there is a strcat, वो हमने हाइड नहीं किया था बट वो भी एक्टिव है। strcat यानी cat स्टैंड्स फॉर कॉन्केटिनेशन। ठीक है, दो स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या करेंगे हम, strct s1 s2। ठीक है, उसके बाद printf स्टेटमेंट, printf डबल कोट्स string s1 equal to %s ठीक है, कॉमा s1 सेमीकोलन। इसी को हम एज इट इज Ctrl+C Ctrl+V 2 run, enter the string Amit, then Amit। ठीक है, नाउ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, स्ट्रिंग 1 में अमित आ गया, स्ट्रिंग 2 में भी अमित आ गया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये हम इसको बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो जॉइन देखना है हमको। Ctrl+C Ctrl+V, कॉन्केटिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, s3 इक्वल टू, और यहाँ पे we'll have multiple changes in the current program depending upon the output which we require, correct। now assignment to the expression with an array type, there is an error, okay। we'll check the syntax of strcat,
strcat remains unchanged string 2 okay part 1 part 2 ठीक strcat str string 1 string 2 and then print the string 1 Amit yes now it works इसको हम कर देते हैं हाइड क्योंकि वो गड़बड़ कर रहा है now this run now first we will check whether this is match or not match ठीक है तो यहाँ पे क्या हो गया मैच हो गया ठीक है एक और थोड़ा सा कर देता मैं इसको string 2 backslash t now it will look good AMIT ठीक है both strings are match with each other thus we will get the message strings are equal अब इसमें string 1 में क्या हो गया वो देखिए अमित concatenated with अमित string 1 में हम concatenation परफॉर्म कर रहे हैं कैसे तो ये एक फंक्शन हमने यूज़ किया सिर्फ सिंगल तो उसमें सोर्स जो है वो है राइट हैंड साइड पे और टारगेट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमेशा याद रखना कि S2 विल बी कॉपीड टू S1 राइट हैंड साइड कॉपी होने वाली है लेफ्ट हैंड साइड में ठीक है दैट इज व्हाट कॉपी नहीं सॉरी कॉन्केटिनेट होने वाली है लेफ्ट हैंड साइड के साथ ठीक है यहीं पे मैं अगर कुछ और देता हूँ जैसे अमित देन राठी अमित राठी ठीक है उसका नेम भी है और सरनेम भी है ठीक है तो इनिशियली वो तो मिसमैच बता देगा क्योंकि इट इज़ बोथ आर नॉट इक्वल बट यहाँ पे स्ट्रिंग 1 में क्या हो गया कॉन्केटिनेशन की वजह से अमित राठी पूरा आ गया फर्स्ट नेम भी आ गया सेकंड नेम लास्ट नेम भी आ गया बट वो अमित राठी कैसे एक कंबाइन स्ट्रिंग करके आ गया दैट इज़ व्हाट कॉन्केटिनेशन तो यहाँ पे हम एक और एक चीज़ कर सकते हैं जैसे कोई बड़ा स्पेलिंग है ठीक है फॉर एग्जाम्पल FOLLWING ठीक है फॉलोइंग ये एक स्पेलिंग है ठीक है अब इसको हम चेक करेंगे सॉरी इसको हम चेक करेंगे whether this is equal or not certainly it is not equal but the string 1 does what string 1 ने क्या कर दिया कॉन्केटिनेट कर दिया और उसका एक मीनिंगफुल स्ट्रिंग बना दी उसको मैंने जो दो स्ट्रिंग्स दी थी FOLL और WING वैसे उसका कोई मीनिंग नहीं है ठीक है बट जब कंबाइन हो जाएंगे कॉन्केटिनेट हो जाएंगे देन वी विल गेट द फॉलोइंग एज अ वन पर्टिकुलर स्ट्रिंग strcat समझ में आया क्या करता है तो यस सर सोर्स कौन है और टारगेट कौन है सोर्स इज स्ट्रिंग 1 एंड टारगेट स्ट्रिंग 2 उल्टा हो गया सोर्स यानी जहां से डेटा जाएगा और टारगेट जहां पे अप्लाई किया जाएगा ओके 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 यानी जो एरो वाला जो रहता है मैंने जो गन फायर करता है या फिर ये फायर करता है जो आर्चरी वाले रहते हैं ना प्रैक्टिस करते हैं तो यस सर जो आर्चरी मैन रहता है तो वो तो हो गया सोर्स वहां से एरो निकलेगा दैट वाज अ पर्टिकुलर सोर्स और जहाँ टारगेट होगा वो गोल राउंडेड रहता है उसमें अलग अलग कलर्स रहते हैं तो सेंटर में अगर लगता है तो वो हो जाएगा आपका टारगेट तो यहाँ पे S2 में जो डेटा है जैसे अमित राठी तो राठी ये जो था डेटा ये S2 में था जो हमने पुट कर दिया S1 में जिसके वजह से अमित एज इट इज रह गया और उसके बाद अपेंड हो गया अपेंड यानी उसके पीछे जाके अटैच हो गया उसके साथ अटैच हो गया वो हो गया राठी तो अमित राठी ये कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग हमको मिल गया तो हमने दो देखे पहला देखा strcmp जो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है दूसरा देखा strcat जो दो स्ट्रिंग को सिर्फ ज्वाइन करता है अपेंडिंग करता है कॉन्केटिनेट करता है ठीक है नाउ नेक्स्ट वन वी विल हैव strcpy इसको हम हाइड कर देते हैं
रहने देते हैं। सर हाँ यस। सर वो ऊपर में मतलब STR CET में हम्म। अगर हमने S1 S2 और S3 लिखा होता तो फिर क्या होता? हाँ, इस केस में तो फिर जैसे S3 का हाँ, दोनों का S1 में कॉपी होता क्या? नहीं नहीं मतलब ज्वाइन होता क्या? नहीं 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 नहीं, ये अगर हम यहाँ पे करके भी देखते हैं, ठीक है, तो आपको वो दिक्कत देगा S3। वैसे एक्चुअली S3 हमने डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि इसको करना पड़ेगा। हाँ उसको करना पड़ेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली इसमें एरर आएगी। क्यों? क्योंकि कैसा है, सोर्स एक रह सकता है, टारगेट भी एक रह सकता है, ठीक है। तो जैसे हम अगर पहले सोर्स दे रहे हैं, तो सोर्स से टारगेट पे डेटा क्या हो जाएगा, कॉन्कर्नेट हो जाएगा। अब जो थर्ड वेरिएबल उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से कन्फ्यूजन ये जनरेट होगा कि सोर्स कौन है और टारगेट कौन है, एंड दैट वी हैव टू मेंशन, दैट वी हैव टू स्पेसिफाई, ठीक है। तो अगर तीन अगर हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एक बार आपको एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा कि उसमें एरर क्या बताता है। एरर के हिसाब से आप उसमें अगर चेंजेस करते हो, देन प्रोबेबली इट विल वर्क, ठीक है। एरर सिर्फ देखनी पड़ेगी कि एरर क्या दे रहा है वो, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि तीन स्ट्रिंग के लिए, जैसे सोर्स एक है, टारगेट दो है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन विच वी यूज, हम जो यूज़ करेंगे फंक्शन उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो इसमें एक और एक कंसेप्ट आता है NCAT, STRNCAT, ठीक है, जो उसके आगे है हमारे यहाँ पे STRNCMP, STRNLEN, STRNCAT, और एक जो यूज़ किया हम करने वाले STRNCPY। तो N स्टैंड फॉर व्हाट, आप स्पेसिफाई करोगे N की वैल्यू, ठीक है, कहाँ तक स्ट्रिंग कॉपी करने हैं, कहाँ तक स्ट्रिंग कंपेयर करनी है, तो कहाँ तक स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करनी है, ठीक है, और कहाँ तक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। दैट स्टैंड्स फॉर अ एन इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, strcpy को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे strcpy है S3, S1। तो अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे पूरे प्रोग्राम में कि आप S1 और S2 को तो रीड कर रहे हो, यूज़र से लेके S1 और S2 को आप रीड कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट S3? S3 सिर्फ आपने क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, उसको इनिशियलाइज नहीं किया। वी आर नॉट एट इनिशियलाइज S3 एनीवेयर, ठीक है, ये भी मैंने कमेंट करके रख दिया है। तो इसका मतलब हमने S3 को कहीं पे भी इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। सो वी विल डू इट, Ctrl+C, Ctrl+V, then this, Ctrl+C and Ctrl+V। दो स्ट्रिंग देंगे AMIT AMIT, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों एक जैसे ही हो गए ना। इसको हम क्या कर देते हैं, /* // नहीं लिया। ओके, नाउ S1 S2 को रीड किया आपने, एंड देन वी विल अप्लाई strcpy, ठीक है। S1 और S3 को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो अमित है जो मैं लिख रहा हूँ, वो किस में जाएगा सबसे पहले, कौन सी स्ट्रिंग में जाएगा? S3 में। नहीं नहीं, सबसे पहले यहाँ पे और हियर Yes, one. S1 में S1। जाएगा, ठीक है। वो कहाँ में जा रहा है, S1 में जा रहा है। S2 में मैं फिलहाल स्ट्रिंग कुछ तो भी ऐसे दे दूंगा, XYZ कुछ तो भी, ठीक है। तो जो S1 की स्ट्रिंग है, चलो ठीक है, उससे भी अच्छा कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हटा ही देते हैं। विल रिमूव S2 को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, सिर्फ S1। वी विल रीड द S1 ओनली, ठीक है, अमित, ठीक
ठीक है, ये रीड कर रहे हैं हम सिर्फ S1 को, बट व्हाट वी विल गेट द स्ट्रिंग 3 अमित। ये स्ट्रिंग 3 हमको अमित क्यों मिल रही है या फिर कैसे मिल रही है, /t। अब सही तरीके से दिखेगा, स्ट्रिंग और 55। अब अच्छे से दिखेगा अमित, ठीक है, बिकॉज वी आर यूजिंग strcpy। अब cpy में हमने क्या लिखा है, strcpy में S1 राइट हैंड साइड पे लिखा है, S3 लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है। यहाँ पे सोर्स और टारगेट कौन होगा, हेलो, Yes, sir. यहाँ पे सोर्स और टारगेट कौन होगा S1 S3 में, S1 S1 इज अ Source. सोर्स, S1 इज अ सोर्स, और टारगेट क्या रहेगा S3। Yes. तो करंटली S1 में अमित हमने दे दिया एज अ स्ट्रिंग, बट S3 सर में, उल्टा नहीं हो गया क्या? हेलो, सर उल्टा नहीं हो गया क्या? S1 S1 सोर्स है और S3 टारगेट है। S1 क्या है, सर S1 टारगेट होगा ना? नहीं, कैसे, यार मुझे एक बात बताओ, S1 में अमित स्ट्रिंग रीड कर रहे हो आप, ये ऊपर दी हुई है, S1 में हम क्या स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं, अमित। तो S1 को मैं अगर प्रिंट करता हूँ नेक्स्ट लाइन पर तो अमित प्रिंट होगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं उसके नेक्स्ट लाइन पे मैं S3 को प्रिंट कर रहा हूँ, उसमें भी अमित आ रहा है, ये कहाँ से आ गया, strcpy से। strcpy से, एग्जैक्टली। तो टारगेट कौन हो गया S1 और सोर्स कौन हो गया S3। सॉरी 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 एग्जैक्टली सॉरी, यहाँ पे सोर्स हो गया S1 और टारगेट हो गया S3, करेक्ट। सोर्स से टारगेट में आपको सिर्फ क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो अमित मैं अगर लिखता हूँ तो वो स्ट्रिंग 1 में आएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट इट विल बी कॉपीड टू द स्ट्रिंग 3 ऑल्सो। मैं अगर इसको कमेंट कर देता हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा अमित, ठीक है, स्ट्रिंग 3 में अमित आ गया जो कि स्ट्रिंग 1 में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ strcpy, strcat और strlen, ठीक है, एलियन नहीं हुआ हमारा, strcpy, cmp, cpy एंड cat, करेक्ट, 3 हो गए, कॉपी, कॉन्केटिनेट एंड कंपेयर, ठीक है। इन तीनों में किसी में कंफ्यूजन है कुछ, नो सर। No, sir. ओके। नाउ इसको कर दो आप हाइड, नाउ वी विल एक्टिवेट दिस L1, L2 एंड L3, ठीक है। उसके लिए हमको तीनों स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ डेटा पुट करना पड़ेगा। खाली स्ट्रिंग की तो वैल्यू वो 0 दे देगा, %s S1, S2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, S1 S2 मैं रीड करूँगा, ठीक है, यूज़र से, ठीक, और ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं एक्टिवेट रखता हूँ strcpy को, ठीक है, जिससे क्या होगा S3 में भी डेटा आ जाएगा, ठीक है। एंड देन वी विल एक्टिवेट दिस स्टेटमेंट, printf स्टेटमेंट जो आखिरी के, इसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। S1 को, S2 को और S3 को वो प्रिंट करेगा, लेंथ भी बताएगा और कैरेक्टर्स भी बताएगा, ठीक है। लेंथ कैसे बताएगा, विद द हेल्प ऑफ strlen। एलियन डेटा किस में स्टोर कर रहा है, L1 में, ठीक है, और कैरेक्टर कहाँ पे स्टोर्ड है, S1, S2, S3 में, ठीक है। देन वी विल रन इट। तो पहली जो स्ट्रिंग होगी हम जो एंटर करेंगे दैट वाज अ पर्टिकुलर अमित, ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग हम देते हैं राठी, ठीक है, अमित राठी। देन वी विल एंटर, नाउ वी विल सी दैट S1 में अमित है, डन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि S1 को हम रीड कर रहे हैं printf स्टेटमेंट के थ्रू, scanf स्टेटमेंट के थ्रू। S2 को भी हम रीड कर रहे हैं, देन ओके, नो प्रॉब्लम।
बट S1 में जो डेटा है वो डेटा S3 में कॉपी हो रहा है विद द हेल्प ऑफ strcpy. ठीक है, मैं अगर इसको कमेंट कर देता हूँ एंड देन वी विल रन इट. अमित राठी. नाउ व्हाट इज देयर? गार्बेज वैल्यू और नथिंग. वी कैन से दैट इट इज नथिंग. तीन कैरेक्टर उसने दे दिए बट इट इज नथिंग, क्योंकि S3 में कुछ भी नहीं है. S1 S2 में तो वही जो हमने डेटा दिया वही है. ठीक है, और एक चीज यहाँ पे मैं अगर जैसे मैंने अभी बोला था शुरुआत में %s और यहाँ पे S3 कॉमा S3 एंटर द 3 स्ट्रिंग्स. ठीक है, और इसको मैंने तो हाइड करके रखा है. ठीक है, नाउ राजकमल स्क्वायर अमरावती. ठीक है, 3 स्ट्रिंग दे दी मैंने. नाउ विल सी दैट राजकमल लेंथ है उसकी 7, स्क्वायर की लेंथ है 2, अमरावती की लेंथ है 8. अब आ गया सर्वेश समझ में कि वो जो 3 स्ट्रिंग जो अलग सर अलग. अभी आपने strcpy वाला जो लाइन थी वो कमेंट कर दी थी ना, इसीलिए ऐसा हुआ. यस 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 एग्जैक्टली. तीनों मैंने रीड किए विद द हेल्प ऑफ स्कैनएफ के थ्रू मैंने उसको रीड किया. ठीक है, और उसके बाद उनको मैंने प्रिंट कर दिया विद द लेंथ ऑल्सो. यहाँ पे क्या है, लेंथ भी है. ठीक है, तो strlen विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. ठीक है, तो आप दो कैरेक्टर को कॉन्केटिनेट करके पहले उसकी लेंथ फाइंड आउट करो, फिर उसको कॉन्केटिनेट करो, फिर उसकी लेंथ फाइंड आउट करो. ऐसे भी बहुत सारे उसमें मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो. ठीक है, नाउ वी जस्ट सी टुडे 4 स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन. फर्स्ट वन इज कौन सा था? याद करो याद करो. strcmp. strcmp. व्हाट इज द रोल ऑफ strcmp? strcmp का रोल क्या है? कंपेयर द स्ट्रिंग. दो स्ट्रिंग को क्या करेगा? वो कंपेयर करेगा. ठीक है, अनदर स्ट्रिंग फंक्शन इज strcat. कॉन्केटिनेशन, यानी वो क्या करेगा? ज्वाइन ज्वाइन कर देगा. करेगा. ठीक है, थर्ड वन इज strcpy. strcpy. cpy मीन्स कॉपी. राइट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग है जिसको हम सोर्स कंसिडर कर रहे हैं उसमें का डेटा जो होगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्ट्रिंग है उसमें कॉपी हो जाएगा, जिसको हम टारगेट बोल रहे हैं. ठीक है, सो सोर्स टू टारगेट मीन्स राइट टू लेफ्ट स्ट्रिंग विल बी कॉपीड. ठीक, दैट इज strcpy. नाउ लास्ट वन इज strlen. len. क्या करेगा? It will Length. tell the length of the string. Yes, it will find out Then the. return the number. Yes, it will find out the length of a particular string which is entered by the either user or we just give by the programmer भी दे सकता है. ठीक है, अब उसमें कुछ अदर फंक्शंस भी हैं जिसमें जैसे मैंने बताया था strncpy. n यानी क्या? तो यहाँ पे 5 मैंने एक n की वैल्यू दे दी. कॉपी करना है, कहाँ से कहाँ कॉपी होगा? S2 में से S1 में कॉपी होगा, क्योंकि S2 सोर्स है और S1 टारगेट है. बट S2 में जो भी स्ट्रिंग होगी उसमें के सिर्फ 5 ही कैरेक्टर कॉपी होंगे S1 में. ठीक है, उसके अलावा अगर कुछ होंगे ज़्यादा तो वो कॉपी नहीं होंगे. अगर कम है तो वो नल कैरेक्टर कॉपी कर लेगा. जैसे कोई स्ट्रिंग है ओम, ये अगर नाम है OM और उसकी लेंथ है 2 कैरेक्टर और हम दे रहे हैं यहाँ पे 5 कॉपी करो, तो बचे हुए जो 3 है वो नल कैरेक्टर वो कॉपी कर लेगा और वो S1 में पुट कर देगा. दैट इज व्हाट असाइनमेंट फॉर यू कि strcpy आपने देखा है, strncpy हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोग्राम में. ठीक है, so for that we have to use the string.h header file. make sure that str.h तो हम यूज करेंगे ही करेंगे.
बट स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल अगर नहीं यूज करते हैं, लाइक दिस, यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल नहीं यूज करता हूँ, उसको कमेंट कर देता हूँ /run, so we will have the warning, and if you do अमित, कुछ नहीं होगा, फिर से देता हूँ, कुछ नहीं होगा, फिर से देता हूँ, क्या दिया उसने, आउटपुट दे दिया, ठीक है, लेंथ का आउटपुट दे दिया, ठीक है, बट जो हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है उसके ऊपर उसने क्या दिया है हमको, वार्निंग दी है, वार्निंग, ठीक है। तो इफ यू डोंट वांट अ वार्निंग, ठीक है, इन दैट केस वी हैव टू यूज हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। बट अगर सेम कंसेप्ट आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अदर फंक्शंस के लिए भी, तो उसमें तो आपको एरर मिलेगी। जो बेसिक फंक्शंस है, फंडामेंटल फंक्शंस है, लेंथ, कंपैरिजन, कॉपी एंड कॉन्केटिनेशन, ये stdio.h में है, डिफाइन है। उसके लिए स्ट्रिंग डॉट एच अगर आप नहीं भी यूज करते हो देन इट इज ओके, बट strncpy, strncmp, then strncat एंड str भी है, cat नहीं, strcat भी है, ठीक है। तो ये जो भी फंक्शंस है इसके लिए आपको डेफिनेटली यूज करने पड़ेगी हेडर फाइल, जिसमें वो डिफाइन होंगे। दैट हेडर फाइल इज नथिंग बट द स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू कंपेयर, कॉपी एंड कॉन्केटिनेट। फर्स्ट है ncpy, तो ncpy में सिंटेक्स ये रहेगा, S1 में कोई तो भी डेटा रहना चाहिए, S2 में कोई तो भी डेटा रहना चाहिए, ठीक है, जिसमें से हम 5 कैरेक्टर कॉपी करेंगे और S1 में डाल देंगे तो वो ओवर राइट हो जाएगा, ठीक है, अगर कुछ S1 में है ऑलरेडी। तो कंपैरिजन जब करेंगे तब डेफिनेटली S1 और S2 में दोनों में डेटा होना चाहिए, और जो वैल्यू आप दोगे इन दैट केस इट विल कंपेयर दैट मच ऑफ कैरेक्टर्स, फर्स्ट कैरेक्टर्स, ठीक है। मैं अगर फॉलोइंग देता हूँ, ठीक है, और दूसरा वर्ड मैं कोई तो भी और ऐसा देता हूँ, ठीक है, ओबीडियंट, तो उस केस में वो क्या कंपेयर करेगा, पहले 5 ही वर्ड्स को कंपेयर करेगा S1 और S2 के बीच में, रेस्ट ऑफ द अदर वर्ड्स विल नॉट गोइंग टू कंपेयर। दैट इज व्हाट अ एन का मीनिंग वही है। देन strncat में क्या होगा, कॉन्केटिनेशन होगा, कहाँ तक, जो भी आप तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के जितने गिवन है, यस एग्जैक्टली, जितने आप कैरेक्टर्स की लेंथ दोगे n वैल्यू, उतने ही कैरेक्टर्स तक वहाँ पे कॉन्केटिनेशन परफॉर्म होने वाला है, ठीक है। देन str, अब ये जो है it is a 2 parameter function that can be used to locate a substring in a string, ठीक है। तो ये कंपैरिजन क्या कर रहा है, str ने दो स्ट्रिंग को वो क्या कर रहा है, कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि द फंक्शन str सर्च द स्ट्रिंग 1 टू सी वेदर द स्ट्रिंग 2 इज कंटेन इन S1, यानी S1 में का डेटा कुछ S2 में है क्या। जैसे ये ABC है विच इज अ सोर्स 1, it will find out whether there is a ABC in S1. Are you getting my point? जो सोर्स है, सोर्स में जो भी वैल्यू दी गई रहेगी या फिर स्ट्रिंग दी रहेगी, उसमें का डेटा चेक किया जाएगा S1 में एग्जिस्ट है क्या। अगर एग्जिस्ट है, इन दैट केस इट विल जनरेट द रिजल्ट, अदरवाइज इट विल स्टॉप। तो उसके लिए हम इफ एल्स यूज करते हैं, ठीक। So that is what str. Then I guess strlen was also there. strlen was also there, but it shows the one kind of a warning, nlen नहीं रहता है, ठीक है, ncpy रहता है, ठीक है। So that is about a particular string related functions, ठीक है। तो ये पूरा हमारा string related functions के related था। तो आपको असाइनमेंट में क्या करना है, anyone recall the assignment? सर हमको बस मतलब str ncpy और फिर ncat इसका आउटपुट देखना है। str ncpy nct ncmp, इसका आपको क्या देखना है कि आउटपुट कैसे आता है,
ठीक है, राइट। टुडे